سلطانہ باجی آئی ہیں. سلام. وعلیکم السلام. وہ پائی جان چودھری نے کہا ہے کہ جو آپ کے ہاں مہمان مقیم ہیں انہیں بھی شام کو ساتھ ضرور لے کر آئیے. اسی سے نجات حاصل کرنے کے لیے تو میں تمہارے یہاں کا کھانا قبول کیا تھا. شاعر ہے وہ مجھے پتا چل چکا ہے. ویسے آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھے فنون لطیفہ سے بہت لگاؤ ہے. یہ بتاؤ بہن, تمہیں کس چیز سے لگاؤ نہیں ہے؟ ویسے آپ بہت ہینڈسم ہیں بھابھی. بھابھی غلطی سے منہ سے نکل گیا. معاف کیجیے, مخل ہونے کے لیے معافی کا خواستگار ہوں. آپ کی تعریف میں کرتا ہوں. ہمارے پڑوسی ہیں چودھری صاحب, ان کی بہن ہے, فنون لطیفہ کی دیوانی ہیں, آپ کو دعوت دینے آئی ہیں. جی وہ میں پہلے ہی سن چکا ہوں, اسی لیے حاضر ہوا تھا. بی بی ایڈریس سیڑھی پہ چڑھ کے کود چاہیے. تمہارا مطلب ہے یہ برابر والا گھر ہے؟ جی ہاں. ہاں ہاں, برابر والا گھر تو ہے, مگر ذرا ٹھیک راستے سے جائیے. آپ شاید ٹھیک فرما رہی ہیں. میں چلتا ہوں, آپ لوگ بھی ذرا جلدی سے پہنچیے. جی میں چلتا ہوں. آپ تو پہنچ جائیں. جی میں بس پہنچا. ویسے آپ ایک بات بتائیں, یہ آپ کے خوبصورت بالوں کا راز کیا ہے؟ تو سودا تو ہم لاتے ہیں, ہم سے پوچھ. تم چلو, سہیلیاں آ گئی ہوں گی, سالگرہ کا وقت ہو گیا ہے. اچھا میں چلتی ہوں, آپ لوگ جلدی پہنچیے گا. ہاں. تو بتا دے میرے سیاہ بالوں کا راز, لاؤڈ سپیکر پہ اعلان جو کروا دے. تو خضاب تو ہم لاتے, اس میں جھوٹ کیا ہے بھلا؟ دیکھ اکبر, سب باتیں ایسی نہیں ہوتی جو بتائی جائے, کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو چھپائی جاتی ہیں. آپ ایسا کیجئے کہ چھپائی جانے والی باتوں کی لسٹ مجھے دے دیجئے, اس لیے کہ صاحب کی بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں, اور صاحب بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کچھ باتیں چھپائی جاتی ہیں, کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں. بھائی دیر ہو رہی ہے, چلو کوئی تحفہ تو لیتے جائیے. محبوب احمد کو اخبار میں پیک کر کے ربن باندھ دے. بھائی لڑنا ہے تو واپس آن کے لڑ لینا. چلو دیر ہو رہی, آ جاؤ. واہ 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 واہ, بہت اعلیٰ اور بہت اچھے شعر کہتے ہیں آپ چودھری صاحب. شکریہ شکریہ. لیکن آپ آدھے گھنٹے سے اپنے ہی شعر سنائے چلے جا رہے ہیں, دوسروں کی بھی تو سنیے. پتر پوئٹ, دراصل جلدی کا ہر کام پورا ہوتا ہے. تم ذرا میری ایک نظم سنو, بہت عظیم نظم ہے, سن 1942 میں نے لکھی تھی. سرکار میں آپ کی نظم سن لوں گا, لیکن آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ میں ایک شاعر ہوں؟ مجھ کو معلوم ہے پتر پوئٹ. تو پھر عرض کیا ہے. اوہ پہلے میری عرض تو ختم ہو جائے. میری جو نظم ہے نا, اس کا عنوان ہے دوسری جنگ عظیم. سرکار آپ یقین جانیے چودھری صاحب, دوسری جنگ عظیم سے بھی زیادہ آپ کی یہ نظم چلے گی, لیکن فی الحال آپ میری سن لیجئے. بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے تم نے. بھائی میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو ضرور سنوں گا. تو پھر آپ سن کیوں نہیں رہے ہیں؟ وہ میں سنوں گا بھائی تم کو. تم ذرا آئیے آئیے, محبوب صاحب آئے ہیں. آئیے پابی آئیے. کیا حال ہے چودھری صاحب؟ سلام. نشست جمی ہوئی ہے. محبوب بھائی عرض کیا ہے, تیرے فراق میں گھڑیاں گزارنا مشکل. اسی زمین پہ میں نے بھی سن 44 میں غزل کہی تھی کہ یوں زلف بکھری کہ اس کو سوارنا مشکل. صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں, تیرے فراق میں گھڑیاں گزارنا مشکل. اور بھائی تم بیچ میں مت بولا کرو, یوں زلف بکھری کہ اس کو سوارنا مشکل. آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ میں شعر پڑھ رہا ہوں, اس میں وزن ہے, ایک کیفیت ہے. تیرے فراق میں گھڑیاں گزارنا مشکل. میرے خیال میں آپ دونوں ٹاس کر لیجیے. چودھری صاحب آپ انہیں تو رہنے دیجیے, آپ کچھ سنائیے. بیگم صاحبہ آپ کس طرح کی بات کر رہی ہیں؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ اپنی سنائے چلے جا رہے ہیں, میری ایک ربائی تک نہیں سنی. بہت اچھا کیا. پاپی دراصل میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو ضرور سنوں گا. تو پھر آپ سنتے کیوں نہیں؟ بہت بے صبرا پوئٹ ہے, پتہ نہیں ہوکا ہے اس کو شاعری کا. بھائی جان پہلے کچھ مہمان سے سن لیں بیچارے سے. کر دیجیے. عرض کیا ہے, نالے کرتے ہیں کبھی آہ کبھی کرتے ہیں. بھائی جان اس زمین میں تو آپ کی بھی ایک نظم ہے. ہاں مجھ کو یاد ہے کہ ساغر چشم میں کچھ لوگ لو پڑتے ہیں. واہ واہ واہ. واہ, زبان پہ عبور دیکھیے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نہایت عجیب آدمی ہیں. کیا مطلب؟ آپ میرے شعر سننے کے لیے تیار ہی نہیں. میں آپ کی رپورٹ مقتدرہ میں کرواؤں گا. کیوں؟ چودھری صاحب آپ کی رپورٹ کرواؤں گا میں مقتدرہ میں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جی آپ کسی کا شعر سننے کے لیے تیار ہی نہیں. میں اب اس محلے سے بھی جا رہا ہوں, اللہ کا شکر. میں آپ کے گھر سے بھی جا رہا اللہ کا ہوں. شکر. مجھے نہیں رہنا ان بدذوقوں میں. جی مبارک. کی سن لیں آپ.
ارے آپ کیا بڑی جلدی محفل برخاست ہو گئی؟ انہوں نے مجھے نہیں سنا اکبر، اپنی ہی شاعری سنائے جا رہے تھے۔ کون؟ وہی آپ کے چودھری صاحب، وہی آپ کے چودھری صاحب۔ میں ان کی مقتدرہ میں رپورٹ کرواؤں گا، تم دیکھ لینا اکبر، میں ان کی رپورٹ کرواؤں گا۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، انہوں نے بہت زیادتی کی ہے اکبر میرے ساتھ۔ اکبر یہ بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بائی گاڈ میں نہیں سنوں گا۔ تم بھی نہیں سنو گے دوست؟ ٹھیک ہے، پھر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، میرا سامان مجھے لا دو اکبر۔ اچھا جی، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ جو کہا تھا میں نے سچ تھا، جو سنا تھا وہ نہیں تھا، جو کہا تھا میں نے سچ تھا، جو سنا تھا وہ نہیں تھا۔ اکبر پتر کچھ پریشان ہو؟ کچھ بہت زیادہ پریشان ہو؟ قسم سے ہم بتا نہیں سکتے، پتہ نہیں کیوں ہمارے ستارے گردش میں آ گئے، ہمیں لگتا ہے اس سال پھر فصل خراب ہو جائے گی۔ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ آپ ایسے کیجئے، صاحب کا یہ بینر اتار دیجئے، ہماری ہمت نہیں پڑ رہی ہے، بڑے ارمانوں سے لگایا تھا آمدنی کا پودا۔ اور اتنی جلدی کیا ہے بینر اتارنے کی؟ دیکھیے نا صاحب آپ کے خلاف تو لڑیں گی نہیں۔ اکبر پتر محبوب بھائی بشیر احمد اور امان اللہ کے خلاف نہیں جیت سکتے۔ ان دونوں کے ٹرک یا مینی کے ساتھ تصادم نہیں ہو سکتا۔ اوے فضول باتیں مت کیا کر۔ یہی میں کہنے جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ نتھنگ۔ محبوب بھائی جو ہے نا، یہ بشیر احمد اور امان اللہ کے خلاف نہیں جیت سکتے، میں جیت سکتا ہوں۔ ملاؤ آپ۔ کیوں؟ آپ واقعی بہت نیک ہے، پتہ نہیں اللہ میاں نیک لوگوں کو اتنی جلدی کیوں اٹھا لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں خود سمجھے بغیر بول گیا۔ اکبر پتر یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے۔ اللہ میاں نیک لوگوں کو کیوں اٹھا لیتا ہے؟ اور نہیں ہے نہیں، یہ کونسلر کے انتخاب والی پتر ہے۔ کیا پھر پتر لگائیے؟ جب میں خود نہیں سمجھا تو دوسروں کو کیسے سمجھاؤں گا؟ میں کہتی ہوں بند کرو اس کم بخت کو۔ کسے؟ بھوپو بازے کو؟ یہ باجا نظر آ رہا ہے۔ ارے جہان آرا بیگم، یہ پرانا باجا ہے، پرانا باجا، اینٹیک۔ اینٹیک؟ یہ بتاؤ اس پورے گھر میں کون سی چیز نیو ہے؟ سبھی تو اینٹیک ہے۔ ہمارا فریج دیکھو، لگتا ہے ملکہ وکٹوریا نے مکھن کی پہلی ٹکی اسی میں رکھی ہے۔ اور یہ تمہارا جھولا، واجد علی شاہ کے جھنجھنے اب تک اس میں سے نکل رہے ہیں۔ بھوپو دیکھو ذرا، تان سین کی پھوپھی نے بھیجا ہوگا اسے۔ اینٹیک، نفرت ہے مجھے اس لفظ سے، اینٹیک۔ اصل میں جہان آرا تمہیں اچھی چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ میں آؤں جھڑپیں ختم ہو گئی، گھر نہ ہوا بارڈر ہو گیا۔ تو کیوں آیا ہے؟ گیہوں دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ یوں لگتا ہے گھن کے ساتھ گیہوں پس گیا، امدادی لگ رہا ہے۔ گھن نکال لینا۔ جی، گیہوں نکالنا آسان ہے، گھن نکالنا بہت مشکل ہے۔ ویسے اکبر میاں، جی میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ تم سے ملنے آئے تھے۔ جی ہاں، وہ دراصل
ایک مقامی ہوٹل میں کوئی فنکشن ہے, ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے آئے تھے 3 رقص کے دلدادے. پھر چلے جاؤ. جی نہیں, میں نہیں جاؤں گا. وہ رقص سے زیادہ سرود کے دلدادے لگتے تھے, اور پھر میں جاؤں بھی کیسے, ہمارے پاس کوئی ڈھنگ کا جوڑا ہی نہیں ہے. ایک سرخ تنگ پاجامہ تھا, وہ بیگم صاحبہ کی اما جان لے گئی. دیکھ, میں نے تجھ سے پہلے بھی کہا تھا, ان کے پاس اپنا بھی ایک سرخ پاجامہ تھا, وہ دھوبی دلا کر انہیں دے دیا, اور انہوں نے بغیر دیکھے رکھ لیا. وہ اکبر, تم ایسا کرو کہ اپنے لیے کچھ اور جوڑے بنا لو بھائی. کیا گیہوں کے بنوا لوں؟ ہائے اللہ رے, اللہ کرے اما جان جلدی سے پیسے لے کر آ جائے بس. سنا اکبر, تمہاری بیگم صاحب کی اما جان پیسے لا رہی ہیں. جی ہاں, 6 پیسے. نا, بری بات. اتنی فضول خرچ تھوڑی ہے جو اتنے پیسے لائیں گے. ہیں تیرا حساب کرنے کے لیے پیسے منگوا رہی ہوں میں. کیا وہ 30,615 روپے لے کر آ رہی ہیں؟ نہ بھی لائی نا تو یہ انگوٹھیاں بیچ دوں گی میں, تیرا حساب کر دوں گی. لیکن صاحب, بہت عرصے کے بعد ایک اچھا لطیفہ سننے کو ملا. بیگم صاحبہ کی اما جان ہمارا حساب کرنے کے لیے پیسے لے کر آ رہی ہے. کیا فائدہ اس کمبخت فریج کا؟ اس کا ایک فائدہ تو ہے بیگم صاحبہ, کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ اس گھر کے اندر بجلی ہے, یہ چلی گئی. بات اچھی کرتا ہے. میں مر جاؤں گی کسی دن اور تم ہنستے رہنا. یہ کیسے ہنس سکتے ہیں؟ اگر یہ ہنسیں گے تو ہم آپ کی اما جان سے ان کی شکایت کر دیں گے, اور اتنے عظیم سانحے کے بعد تو یہ ہنس ہی نہیں سکتے. ہمیں تو ابھی سے سوچ کے دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کتنی اچھی تھیں. بکواس نہ کر زیادہ, چل اٹھ کے سامان اٹھا سارا جو کچھ گرا ہوا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ جاؤ دیکھو کون ہے. یہ تم نے بری بات منہ سے نکالی کیوں؟ اگر مرنا ہوتا جہان آ رہا تو جس دن چلتی ٹرین سے گری تھی. صاحب, آپ کے مخالف آئے ہیں, بشیر احمد اور امان اللہ. یہ کیوں آ گئے؟ شکل سے تو لگتا ہے کہ اغوا کرنے کے لیے آئے ہیں. بکواس مت کرو, جاؤ بلا کے لے کے آؤ. یہ کتنا شوق ہے ان کو اغوا ہونے کا. تم جاؤ بورچے خانے میں جاؤ, پتہ نہیں کون ہے, اندر جاؤ. آئیے جناب, آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ. جی امان اللہ نہیں, امان اللہ بشیر احمد. جی فرمائیے, تم جا کے چائے لے آؤ. صاحب ذرا ماحول تو دیکھ لیجیے, کیا پتہ ضرورت نہ پڑے. جی ارشاد. ارے صاحب, آپ تو ہمیں نہیں پہچانتے مگر ہم آپ کو پہچانتے ہیں. سارا محلہ آپ کی عزت کرتا ہے. صاحب, ہم سب تو بہت خوش تھے کہ آپ کونسلر کا انتخاب لڑ رہے ہیں. تو چودھری صاحب کے مقابلے میں آ جانے سے آئیے چودھری صاحب, آئے. بری بات, یہ تم جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ یہ بھی تو بول رہے ہیں. جی معاف کیجیے گا, تم جا کے چائے لے کے آؤ, جاؤ. اچھا جی. جی ارشاد. محبوب صاحب, آپ تو خود سرکاری افسر رہ چکے ہیں, ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ویسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو بہتر طور پر نہ سمجھا پا رہے ہیں, لیکن صاحب آپ کا کونسلر بننا بہت ضروری ہے. اچھا, اب چودھری صاحب کے پاس تو پہلے سے بہت کچھ ہے, اب کونسلر بھی بن جائیں گے. ارے ان کی تو پہلے ہی بسیں چل رہی ہیں, اگر کونسلر بن گئے تو جہاز چلنے لگیں گے. دیکھیے قبلہ, چودھری صاحب ہیں زمیندار آدمی, بہت نیک, بہت دوست نواز. اور کونسلر بننے کی بات تو کونسلر بھائی آپ بن سکتے ہیں, میں بن سکتا ہوں, چودھری صاحب بن سکتے ہیں. مقصد تو محلے کی خدمت کرنا ہے نا. ارے صاحب, آپ بہت سیدھے آدمی ہیں. ارے صاحب, محلے کے ساتھ ساتھ اپنی خدمت بھی تو ہوتی ہے. ویسے بھی آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں. جب باغیچہ ہی نہیں رہا تو مالی حالات کیسے ٹھیک رہ سکتے ہیں. وہ چائے بیگم صاحب نے لاک اپ میں بند کی تھی. نہیں صاحب, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات ہم پھر حاضر ہوں گے. لیکن آپ ہماری باتوں پر ذرا غور فرمائیں اور محلے کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی, آپ ہم کو غلط نہیں سمجھیں. جب آپ ہیں ہی غلط تو ہم کیا سمجھیں گے. اکبر, ویسے آپ دونوں کی اطلاع کے لیے ایک دفعہ پھر عرض یہ ہے کہ میرے مالی حالات بہت سو سے اچھے ہیں. میرے پاس اللہ کا دیا لیا ہوا سب کچھ ہے. خدا حافظ. چلیے. نکمے. سوری بیگم صاحبہ, پتہ نہیں چلا کہ توا لیفٹ پہ ہے یا رائٹ پہ, ہاتھ سلپ ہو گیا. ویسے ایک بات بتائیے, آٹے میں نمک ٹھیک تھا؟
वक्त तूने तो तंदूर बना के रख दिया मुझे। हाय अल्लाह, मेरी अम्मा जल्दी से पैसे लेकर आए तो तुझसे तो मेरी जान छूटे। हाय अल्लाह, अगर आपकी अम्मा जान पैसे लेकर नहीं आई तो अम्मा जान से किसी जान छूटी। मेरी अम्मा के खिलाफ कुछ कहा तो आपकी अम्मा जान ना तो मुझे बिल्कुल अच्छी लगती। भाई अकबर मियां, आज खाने में क्या पका है? बटेनी चिकन कढ़ाई बिरयानी। सच सच बताओ क्या पका है? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे यहाँ पर रोजाना चेंज लंच पकता है। अरहर की दाल है और आलू की सब्जी। पता नहीं चौधरी साहब के यहाँ से बहुत दिनों से कुछ नहीं आया। उनके यहाँ से तो अब रिश्ता ही आएगा। अल्लाह बेगम साहब, आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। तो भाई फजूल बातें मत करो, मुझे भूख लगी है, खाना निकालो ना। खाने में अभी कुछ देर है, बहुत भूख लगी है तो थोड़ी सी डांट खा लीजिए। ईमान से अगर मेरे अब्बा के यहाँ ऐसा मुलाजिम होता, उसकी टांगे तोड़वा के गली में फिकवा देते। अगर किसी मुलाजिम के किसी मालिक ने 30,615 रुपए देने होते तो हमारे अब्बा जान भी उस मुलाजिम के साथ यही सुलूक करते। मियां, बस थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। आपको तो शायद थोड़े का मतलब ही नहीं मालूम। पुराने रिकॉर्ड की तरह थोड़े पे सुई अटक के रह गई है। थोड़े दिनों की, थोड़े दिनों की, थोड़े दिनों की, थोड़े दिनों की। दाल गल गई? साहब आपसे पूछ रही है। ये घड़ी मैं भाभी के लिए लेके आया था। जी? आज मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ। वो ये कि चौधरी साहब से कहें कि वो आपके हक में आखिरी रोज बैठ जाए अच्छा। और आप मेरे लिए बैठ जाएं। जी जी जी। इस छोटे से काम के लिए मैं आपको 50,000 रुपए दे सकता हूँ, और वो भी कैश। बहुत खूब। जीत के लग रहे हैं, घोड़ों की महक आ रही है। आप ऐसा कीजिए कि ये अगर कम है तो मैं और बढ़ा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बशीर अहमद से मोहतात रहिएगा, बहुत ही कमीना बंदा है। आइए बशीर साहब। ये क्या बदतमीजी है? जी जी। आप काफी अरसे से इस महल्ले में रह रहे हैं, लेकिन अफसोस है कभी तक आपको लोगों की पहचान नहीं हुई। मैं समझा नहीं। आपने गलत घर देख लिया मानुल्लाह साहब। उठाइए ये घड़ी, उठाइए सब चीजें यहाँ से कमाल है। ले जाइए। आप मुझे अभी तक गलत समझ रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। उठे, चलें चलें, जहाँ जल्दी करें। 1 मिनट जरा क्या जाने भाजन। आप पहले मुझे ये बता के जाइए, ये मिठाई आपने कहाँ से खरीदी थी? बड़ा जालिम लड्डू है। यार अकबर, हमें समझ में नहीं आता कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। साहब ये सिलसिले तो अब जारी रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि वो आपको सबकी तौफीक अता फरमाए, वरना गया आपका भरम। क्या मतलब? भाई अगर आपने एक तोहफा कबूल कर लिया तो दूसरे तोहफे का इंतजार रहेगा, और जिस दिन कोई तोहफा नहीं आएगा वो दिन कटे नहीं कटेगा बल्कि काटने को दौड़ेगा। इसलिए प्लीज कोई तोहफा कबूल नहीं कीजिए। मुझे मालूम है पर मालूम है। तुम भी मत खाओ ये। चलो मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आओ, जाओ। शाबाश, उठो। जाना भाई, मैं नहीं समझता था कि काउंसलर के इंतखाब में ऐसी हरकतें होती हैं। यानी अपनी 25 साल सरकारी नौकरी में मैंने इतना पैसा नहीं कमाया जितना वो अमानुल्लाह मुझे तोहफे में देने आया था। और वो भी बेईमानी का पैसा। हाँ हाँ, तुम क्यों लेने लगे बेईमानी का पैसा? तुम्हारे जद्दे अमजद तो ईमानदारों के कमिश्नर थे। मुझे मत सुनाया करो बेवकूफी के किस्से। मुझे तो जान आ रहा, मैंने जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं की। महकमा मौसमियात में क्या बेईमानी करते तुम? मौसम का हाल बदलना तुम्हारे बस में होता तो शायद कुछ कमा भी लेते। अच्छा ठीक है, सीते वक्त कम बोला करो, वरना पिछले साल की तरह कुर्ते की आस्तीन में अंगूठा सीध होगी। नजर भी तो कमजोर हो गई। हाँ भाई, नजर तो हमारी भी कमजोर हो गई है। कमजोर और खराब में बहुत फर्क है महबूब अहमद। तुम्हारी नजर खराब हो गई है, और वो भी दूर की। उसके लिए चश्मे की जरूरत नहीं है। ठीक है जान आ रहा, नोट कर लो, तुम अच्छी तरह नोट कर लो कि इस दफा झगड़ा तुम शुरू कर रही हो। हाँ। तुमसे झगड़ा करके मैं बेचारी कहाँ जाऊंगी? तुम कम से कम पड़ोस में तो जा सकते हो। अरे छोड़ो, तुम्हें मालूम है कि वो अमानुल्लाह क्या कह रहा था? मुझसे कहने लगा कि आप 50,000 रुपए ले लें और चौधरी के खिलाफ लड़ें। तो कुश्ती लड़ने को तो नहीं कह रहा था। काउंसलर का इंतखाब लड़ना क्या मुश्किल है? कोई भी लड़ सकता है। तो तुम चाहती हो कि मैं वो 50,000 रुपए ले लूं? कौन नहीं चाहेगा है? लेकिन
तुम चौधरी के खिलाफ कभी भी नहीं लड़ोगे। तो ठीक कहती हो, ठीक कहती हो। अरे भाई आखिर शराफत भी कोई चीज होती है कि नहीं? शरीफ नहीं हो महबूब अहमद, इसीलिए नहीं लड़ोगे। ध्यान आ रहा। तुम्हें याद है कि हमने शादी के दिन तुमसे एक वादा किया था? मुझे कम शादी याद नहीं, वादा क्या याद रहा होगा। तुम्हारे वादे जमा करती तो बक्सा भर चुका होता। कुछ याद नहीं है? सिर्फ इतना याद है, मामू ने कहा लड़का CSP है और खुश शक्ल है। ये काफी नहीं है? DSP और बदशक्ल होता तो बेहतर था, जिंदगी चैन से तो गुजरती। मालूम है मुझे जान आ रहा, बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये सारी बातें तुम दिल से नहीं करती हो, इसीलिए तुम्हें बुरा नहीं मानता। ओ भाई महबूब भाई ऐसा नहीं कर सकते। अरे साहब जबरी रिटायर्ड हैं, 25 साल तक अपना घर का मौसम खुशगवार रखा, बहुत कुछ है उनके पास, ये सब दिखावा है। वैसे चौधरी साहब आप मेरी गुफ्तगू पर गौर फरमा रहे हैं ना? शिकायतों को आप बशीर अहमद साहब बयान का वसीला नहीं बल्कि तख्लीकी अमल बनाना चाहते हैं। हाँ, क्या अच्छी गुफ्तगू करते हैं आप। और भाई जिस तरह ये पाकिस्तान हम सबका है, इसी तरह मोहल्ला भी हमारा है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। ये बताएं कि आप कह रहे थे कि महबूब भाई ने आपसे पैसे मांगे हैं और कहा है कि चौधरी को काउंसलर का इंतखाब लड़ने से मना कर दूंगा। चौधरी साहब मुझे भी मरना है, झूठ नहीं बोलूंगा। डायरेक्ट तो नहीं कहा, अलबत्ता एक इशारा किया था जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि वो कैश मांग रहे हैं। कितना? 50,000। अच्छा, वो अमानुल्लाह साहब कहाँ है? अरे छोड़िए साहब, किसकी बात करते हैं। देखिए चौधरी साहब, ये गुफ्तगू मेरे और आपके दरमियान ही रहेगी, क्योंकि अमानुल्लाह है बेईमानी की जंबील। यार वो तो आपके बचपन के दोस्त हैं। अरे साहब वो तो हैं, मगर मैंने उनको अब पहचाना है। बहुत देर में पहचानते आप हैं। आप लोग तो जल्दी पहचान लेते हैं। चौधरी साहब महबूब अहमद बहुत चालाक आदमी है, आपने अब तक नहीं पहचाना? अगर ये बात है तो फिर मैं महबूब अहमद के खिलाफ लड़ूंगा। जी माफ कीजिएगा चौधरी साहब, मैं आपको गलत समझा है। क्या मतलब? जी वो मुझे तो महबूब अहमद ने कहा था कि अगर तुम ये बात चौधरी साहब को जाकर बताओगे तो वो सदमे से निढाल होकर फौरन गिर पड़ेंगे और अपना नाम विथड्रॉ कर लेंगे। वैसे चौधरी साहब अगर आप फरमाएं तो कल एक चक्कर और लगा लूं? नहीं, आपने मुझे परेशान कर दिया है, मुझको समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। बस जाए आप, जाए आप। जी हाँ जाए। वाह महबूब भाई वाह। इतने दिनों से आप आए नहीं चौधरी साहब, हम लोग तो परेशान ही हो गए थे। वाकई नेकी और ईमानदारी आप पर खत्म है, शराफत की आखिरी किस्म मालूम होते हैं आप। भाभी मैं तो मल्ला ही छोड़ के जा रहा था, जब मुझे बशीर अहमद साहब ने बताया कि महबूब भाई ने कैश मांगा है। महबूब साहब ने जिंदगी में कैश देखा ही नहीं तो मांगते कहां से? आप भी कमाल करते हैं चौधरी साहब, यानी आपने भी उन लोगों की बात का यकीन कर लिया? ओ महबूब भाई का यकीन किया है, इसीलिए तो आपके पास यहाँ आया हूँ इस वक्त। कसम से चौधरी साहब ने जिंदगी में इतनी नेकियां की कि हमारे जी चाहता है चौधरी साहब को उठा के दरिया में फेंक दें। वैसे भाईजान चौधरी की नेकी और ईमानदारी की वजह से अब्बा जान ने इनको जदाद से आख कर दिया था। बीच में ना बोल। वैसे महबूब भाई जी आज मैं बहुत खुश हूँ। साहब जल्दी से उठ के कोई खुशी का रिकॉर्ड लगा दीजिए आप। हाँ चल साहब आप बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप? मेरे ख्याल में मुन्नी बेगम की कोई नज़म सुनाए। वो चल साहब मेरे पास तो 50 साल पुराने गाने हैं। मुन्नी के? नहीं, दूसरे गाने वालों के। अच्छा जी। बेगम साहब इस खुशी के मौके पे कम से कम आप ही कोई गीत सुना दीजिए। भाभी आप भी गाना गाती हैं? मेरा जरा गला खराब है, वरना गाना सुना देती मैं। अमशीरा मेरे ख्याल में आपका गला जो है कुछ ठीक है। मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब न मान, मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब न मान, तेरा
हमें हिजर का झगड़ा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे बस बहुत हो गई, बस करो। वो जी चौधरी साहब, तो मैं ये कह रहा था कि आप हमें बताइए कि हम लोग आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये चौधरी साहब, अब देखिए ना कि आप तो बिला मुकाबला काउंसलर बन जाएंगे। क्या कह रहे हैं महबूब साहब आप? बिला मुकाबला काउंसलर तो आप बन रहे हैं। तुम्हें हर खुफिया बात की खबर है? मैं समझा नहीं चौधरी साहब, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? दरअसल बात यह है महबूब भाई कि मैं इसलिए खड़ा हुआ था कि बशीर अहमद और अमानुल्लाह के खिलाफ आप नहीं जीत सकते हैं, मैं जीत सकता हूँ। और अब वो दोनों मेरे हक में बैठ गए हैं, और अब आखिरी दिन मैं आपके हक में बैठ जाऊंगा। और अगर आप बैठना भूल गए तो? मैं याद दिला दूंगी इनको। नहीं नहीं चौधरी साहब, नहीं। देखिए चौधरी साहब, आपके काउंसलर बनने में आपका बहुत फायदा है। ओ नहीं महबूब भाई, मेरा फायदा आपके काउंसलर बनने में है। जी क्या मतलब? देखे ना कि खुद काउंसलर आदमी हो तो रूट परमिट नहीं बनाना कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब ये काम आप करेंगे। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज्ड, बात सुनिए। क्या कोई पर्स गिर गया है आपका? छोटे छोटे बच्चों की फीस थी उसके अंदर। बहुत ही बदतमीज आदमी हैं आप। महबूब अहमद साहब का मकान यही है। आप इसे मकान कहते हैं? यही है वैसे। यहाँ कोई कमरा किराए के लिए खाली है। आपको हमारे घर में कमरे चाहिए? नाम क्या है आपको? सफीरुल्लाह। उल्लाह? किस मुल्क के सफीर हैं आप? मुल्क के नहीं भाई, मेरा अपना नाम सफीरुल्लाह है। नहीं, एक्चुअली पता है कि आपकी शक्ल मेरे एक फेवरेट एक्टर से मिलती जुलती है। आपकी शक्ल भी मेरे एक फेवरेट से मिलती जुलती है। आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट है फिल्मी स्टार लहरी। आपका? मसरत शाहीन। माफ कीजिएगा, मुझे ही लहरी कहते हैं। हाय अल्लाह, नहीं। हाय अल्लाह। हाँ, उफ। आइए लहरी साहब, आइए। अच्छा, माफ कीजिएगा लहरी साहब, वो कमरे में फर्नीचर जरा महदूद है। जी जी। अगर आप कहें तो फोम वाला पलंग मंगवा दूं? नहीं 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 जी, मेरी कमर में दर्द है, मैं फोम के पलंग पे सो नहीं सकता। चौधरी साहब के यहाँ एक तख्त खाली पड़ा हुआ है, वो अगर आप कहें तो मैं जाके ले आऊं। खाली तख्ते से भी मेरा काम चल जाएगा। अब अगर आप 2-3 रोज तक ना आते तो मैं इसका डिजाइन चेंज करने वाली ही थी। ये महबूब अहमद साहब का? नहीं नहीं नहीं, इस कमरे का। अच्छा अच्छा। लहरी साहब, हमारा डिजाइन तो जहानारा बेगम के मूड के साथ चेंज होता रहता है। जी वो तो मैंने खुद ही अंदाजा लगा लिया। बेगम साहिबा नहीं थी तो आपकी पेशानी का डिजाइन ठीक था। इनके आते ही आपकी पेशानी पर सिलवटें पड़ गई और भवें कुछ ऊपर की तरफ चली गई। वो ऐसी कोई बात नहीं लहरी साहब, वो भाई मजाक कर रहे हैं लहरी साहब। लहरी साहब, जहानारा बेगम बहुत उम्दा शख्सियत की मालिक हैं। जरूर होंगी, जरूर होंगी, लेकिन अकबर से फीडबैक कुछ अच्छी नहीं मिली। बरकम्बख्त को तो कभी कोई चीज अच्छी नहीं मिली। आपको जिस चीज की भी जरूरत हो महबूब अहमद से मंगवा लिया करें ना। चलिए छोड़ें इन बातों को, आइए हम चाय पीने चले। चलिए। आप अकेले यहाँ क्या करेंगे? जी आप भी हम लोगों के साथ चले, चाय पी लीजिएगा। आइए। जरूर जरूर, चलिए चलिए। तुम्हारे घर में पावर है? आइए आइए चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, हमारे घर में पावर है। महबूब भाई, यही पूछने आया था मैं। चौधरी साहब आइए, आज आपको हम अपने नए मेहमान से मिलवाते हैं। बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है, जनाब लहरी। ओ खैर लहरी साहब। देखिए ऊपर से न गुजर जाइएगा। तशरीफ रखिए चौधरी साहब, तशरीफ रखिए। मैंने आपकी बहुत फिल्में देखी हैं। हाँ, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और कसूर तो किसी का भी नहीं है जी। अकबर पुत्र, मेरे ख्याल में एक फेज नहीं आ रहा
तो तुम जरा महबूब भाई के कमरे में चेक करके आओ, जाओ, शाबाश। आप ऐसा कीजिए, जरा फ्रिज चेक कर लीजिए। अच्छा चलो। फ्रिज भी चल रहा है। अच्छा मैं जरा साहब का कमरे चेक करके आता हूँ। कमरे में तो सुपर पावर थे। भाभी और सुपर पावर। हाँ चौधरी साहब सही तो कह रहे हैं लहरी साहब। जान आरा बेगम ने पिछले 20 सालों में मेरा हर फैसला वीटो किया है, तो सुपर पावर तो होगी ना। हैं? नहीं मैं नहीं मानता कि बेगम साहिबा सुपर पावर हैं। ओ तो तू क्यों नहीं मानता? बेगम साहिबा हमेशा अपने घर के अंदर लड़ती हैं। अगर सुपर पावर होती तो दूसरे घर जाके लड़ती। दूसरे घर जाके लड़ती? तू चुप कर है, बड़ा आया यूएन का नवासा। कम बखत देखची तो तुझसे उठाई नहीं जाती, सुपर पावर की बातें कर रहा है। चल जाके चाय बना। महबूब साहब, मैं बता नहीं सकता कि आप लोगों से मिलके मुझे कितनी खुशी हुई है। नवाजिश यही हाल हमारा भी है। आपके बच्चे कितने हैं? आपने पाले हैं? मेरे ख्याल में ये पूछना चाहती हैं कि आपकी घरेलू जिंदगी कैसी है? हमारी तो फिलेटू जिंदगी है। फ्लैटू जिंदगी ये क्या होती है? फ्लैट में रहते हैं, घर नहीं है। जिंदगी अच्छी तो कट रही होगी। फ्लैट में तो खराब कट रही है, बालकनी में जरा अच्छी गुजर जाती है। तो आप बालकनी में बैठे रहते हैं? ज्यादातर। और आपकी बेगम साहिबा? वो बावर्ची खाने में रहती हैं। मेरी साहब ये बात समझ में नहीं आई कि आप हर वक्त बालकनी में क्यों बैठे रहते हैं? इसलिए कि सामने वाले फ्लैट में जो मियाँ बीवी रहते हैं तो उसमें मियाँ ज्यादातर बावर्ची खाने में रहते हैं। अकबर खाना पक गया? खाना? पड़ोसी अभी घर में ही हैं, जाएंगे तो फलियां तोड़ के पकाएंगे हम खाना। सुल्ताना बाजी आई हैं लहरी साहब के ऑटोग्राफ लेने के लिए। हाँ तो भेजो भेजो उनको, जाओ अकबर भेजो उनको। ये सुल्ताना बाजी कौन है? जी वो ठहर जाओ मैं बताऊंगी। चौधरी साहब है ना हमारे पड़ोसी जी। उनकी हमशीरा है मुटल्लो। मैंने आज तक इनका पूरा नाम लिया है महबूब अहमद, मगर वो सिर्फ महबूब कहती है इन्हें। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। पिछले दिनों अपनी नजर सुनावे मुझे आकर। देखा आपने लहरी साहब? जी साहब देख लिया। अजी हुजूर यहाँ आकर हर बेगम दीवानी हो जाएगी। वैसे वो बहुत अच्छी खातून हैं, पढ़ी लिखी हैं, फनून लतीफ़ा की बहुत शौकीन दिलदादा हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं। पता नहीं जहान आरा बेगम कौन से क्या चढ़े। और वैसे क़िबला शादीशुदा आदमी का किसी खातून से बात करना भी अजाब है। तो ये बताइए कि फिल्मी दुनिया में आपकी इस बात पे नाराजगी होती है या नहीं? देखिए साहब, फिल्मी दुनिया में अगर शौहर किसी औरत से बात कर रहा है तो वो कभी न कभी उसकी बीवी रह चुकी होती है, और अपनी बीवी से बात करना तो कोई बुरी बात है नहीं। जी जी। आइए सुल्ताना बीबी आइए। बिल्कुल भाई पे गई हैं क्या? जुड़वा हैं? क्या मतलब? कौन कौन? ओह चौधरी साहब आप वो हमशीरा तशरीफ नहीं लाई? आइए बैठ। वो दरअसल जी उसको बड़े लोगों से मिलने का बहुत शौक है। लहरी साहब के दस्तखत चाहिए इसको। बड़े तो आप हैं चौधरी साहब, हम तो दही बड़े हैं, सब खा रहे हैं। सलाम महबूब साहब। वालेकुम सलाम। आओ हमशीरा बैठो। आओ, तशरीफ रखिए। लहरी साहब आप है सुल्ताना लहरी साहब। ये महबूब साहब, पड़ोसियों की वजह से घर आपका कुछ छोटा पड़ गया। 2-4 दिन की बात है जनाब। महबूब भाई काउंसलर हो जाएंगे तो फिर यही घर विला बन जाएगा। हाँ जी, महबूब विला। अब बहुत मुनासिब नाम है, बहुत मुनासिब है जी वैसे कार फोन के बगैर बहुत बेकार है जी। मैंने तो भाईजान चौधरी से कई दफा कहा कि भाभी जारा के घर में फोन लगवा दें। ओहो हमशीरा, डिमांड नोट तो आ जाए। महबूब साहब, कबल इसके कि आपका डिमांड नोट आए, आप जरा बावर्ची खाने में एक चक्कर लगा लें। बिल्कुल सही कहा, मेरे ख्याल में चक्कर लगा लीजिए तो अच्छा है। वो लहरी साहब जरा ऑटोग्राफ दे दीजिएगा।
आपका नाम? जी सुल्ताना। सुल्ताना क्या? जी पूरा नाम? सुल्ताना अली खान। क्लासिकल गाती हैं? बस जी थोड़ा बहुत गाती हूँ जी। वैसे भाईजान चौधरी को जी क्लासिकी का बहुत शौक है जी, बहुत क्लासिकी गाना गाते हैं सुबह दोपहर शाम। तो गोया हर वक्त का राग अलापते हैं। बस जी थोड़ा बहुत शौक हर फनून का है मुझको। जी बस मुझे और भाईजान को तो जी इतना शिद्दत से फनून लतीफा से लगाव है कि लोग अक्सर हमारे घर को आर्ट काउंसिल समझते हैं जी। समझ में नहीं आता है कि इस मुसीबत से कैसे निजात मिलेगी। 20 साल साथ गुजारने के बाद बीवी को मुसीबत नहीं कहते हैं जी। हाँ, खामोश बीवी तो अल्लाह की देन होती है। लहरी साहब, मैं बिला मुकाबला काउंसलर बनने की बात कर रहा था, ये बीच में आप बेगम कहाँ से ले आए? बात मत बनाएं डरपोक। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? महबूब साहब जरा बात सुनिएगा। जी। ये कबूतर आपको कहां से मिला? क्लासिकल डांसर है। अच्छा। और कुछ आता नहीं, मजबूरन मुलाजमत कर रहा है। ये कहानी तो मैं सुन चुका हूं। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये बैठे बिठाए आप काउंसलर के लिए क्यों खड़े हो गए? ये मेरा आइडिया था जी। जिंदगी में पहली बार हिमाकत की। दूसरी साहब, पहली हिमाकत आप हमेशा भूल जाते पागल है, सुन लेंगे ना तो कयामत आ जाएगी। हम नहीफ हैं, आहिस्ता डांटा करें आप, किसी दिन कबूतर की तरह उड़ जाएंगे। बेगम साहब ठीक कहती है, पर निकल आए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ खुसुर फुसुर हो रही है। अब खुसुर फुसुर पे तो कोई रोक टोक नहीं है ना? अकबर मियां जी। मेरा नाम लहरी है या आपका? आपका जी। तो फिर आप लहरा के क्यों चलते हैं? चलते में कुछ झोल पड़ता है। आप सीधी तरह नहीं चल सकते? एक तो इन तनकीद निगारों से हम बहुत तंग आ गए हैं। कौन साहब हैं? कैसे हो अकबर साहब? किसका खत है? भाई आपका खत है। अल्लाह करे हम खैरियत से हों। सुना है ये महबूब साहब काउंसलर हो रहे हैं। अच्छा, ज्यादा बातें मत बनाओ, लो खत दो। अच्छा मियाँ, ये खत लो। अरे क्यों रो रहा है? क्या हुआ? खत आया है। किसका खत? हमारी मंगेतर का। तेरी मंगेतर का? खैरियत? उसके यहाँ लड़का हुआ है। क्या बक रहा है? शाहीना की अम्मी ने पिछले साल उसकी शादी कर दी थी। तुझे इत्तला दिए बगैर ही? अच्छा हो गया इत्तला नहीं दी, वरना कोई तोहफा ही देना पड़ जाता। आप कहाँ गई थी? साहब ढूंढ रहे हैं। मुझको? ये तो पता नहीं। अच्छा चल अंदर।